I used to cry a lot and I used to ask questions like what's life beyond this. There are tools जो वो खुद कर सकते हैं अगर वो सीख ले तो मैं चाहती हूँ कि ये हर बच्चे तक पहुँचे, अर्ली स्टेज में पहुँचे, क्योंकि अभी मुझे लगता है आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज अ किड। हैप्पीनेस को बाहर लाके एक गाना नहीं बनता, हमेशा हमेशा किसी एक सैड इमोशन को क्रिएटिव करके वो गाने बनते हैं एंड पीपल एक्चुअली रिलेट टू इट। या जो भी ओवर थिंकर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आर्ट जरूर होगा, क्योंकि उसी एनर्जी से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो अभी हुआ नहीं है। उसी एनर्जी से आप कुछ प्रोडक्टिव भी क्रिएट कर सकते हैं। अलाउ योरसेल्फ टू फॉल ऑफ ट्रैक, यू हैव टू अलाउ योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स एंड टू ऐसा नहीं होता है कि आप स्क्वायर वन पे आ जाते हो। स्पेसिफिकली इन इंडिया दिस इज अ कल्चर टू डिनाई व्हाट द किड और व्हाट स्टूडेंट्स आर फीलिंग। कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। वी नीड टू वैलिडेट द फीलिंग्स फर्स्ट। Hello everyone, welcome to the podcast where we untangle chaos and find clarity. Today's topic is actually really close to my heart, and obviously it is something that all the students would relate to. The topic for today is overthinking. Overthinking is one thing that kills your motivation, destroys your focus, and doesn't give you any peace of mind. But it's not just about overthinking. Today's podcast is also about finding clarity, regaining your focus, and locking in. Today with us, we have Dr. Sunaina Shukla. She's a psychologist who has helped thousands of students and also works with a lot of corporates through our CTCD division. So without any further ado, let's get into the podcast. Hi, Dr. Sunaina. Hi Piyush ji, how are you? I'm absolutely fine. How are you feeling? I'm feeling good. So I would rather want you to start with an introduction, and I want to know your journey as to how you got into psychology as a career. Definitely, Piyush ji. Thank you for having me. And I am a psychologist. I help students and as well as I help professionals to understand their emotions and come out of anything that is not serving them, all the overthinking, procrastination, any trauma that they are going through. So this is what I do basically. And talking about my journey, I did not choose this profession. I was dragged into it because when I was in 6th standard, I was diagnosed with depression. Now at that, I come from a very small town in Odisha. And depression word was not in vogue as it is now today. Today people are aware that depression is something. It is not a mental illness. It doesn't make you mad. But then back then people did not want to address this word. I used to cry a lot and I used to ask questions like what's life beyond this. I mean, a girl who is 12 years old in standard 6th, it was alarming for my parents. Gradually, my parents did everything at their disposal. झाड़ फूक से लेके आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, हर जगह they did whatever they could do. Initially वो बंद हो गया. I mean, उस समय के लिए I got back to school and I started my studies. I continued with my studies, but as I started growing up, episodes of anxiety and unease in my body, I could feel my heart racing. I could feel me overthinking. I could feel the hot flashes and everything. So at that point I could not tell my parents because मुझे पता था कि जब मैं छोटी थी और ये हुआ था तो they got really बहुत परेशान हो गए थे वो. So now I had no choice but to research about it. Then I started researching. फिर इंटरनेट आया, हमारे पास कुछ कोर्सेज आए. And then I saw people naturally drawing towards me and they were coming and they were sharing their stories with me. So I thought, why not to alchemize this pain into power and let's use it, convert it into a purpose. Then I started pursuing my diploma in child psychology. I did emotional wellness coaching under ICF, International Coach Federation. Then I came here and luckily I was taken from teaching into coaching and training. And now we have been training and we have been helping people across the country and even across the globe to come out of their emotional anxiety and emotional pains.
So that is how it began, and I'm still learning, and I do experience, I myself feel a lot of feelings at this point also. But since I have tools at my disposal, it is easier for me. I want other people to know about those tools. They don't have to go to a psychologist every now and then. There are tools जो वो खुद कर सकते हैं अगर वो सीख लें तो मैं चाहती हूँ कि ये हर बच्चे तक पहुँचे, अर्ली स्टेज में पहुँचे, क्योंकि अभी मुझे लगता है आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज अ किड. सो दिस इज़ माई विजन, एंड कलिंगा CTCD के थ्रू हम ये विजन को पूरा कर रहे हैं. लकीली हमारा विजन अलाइन करता है, हमारा मिशन अलाइन करता है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी ऑल आर ड्रिवन बाय इमोशंस, वी कैन नॉट डिनाई दैट. सो मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे हम सब इस चीज़ को समझें और मे वी कम आउट ऑफ इट. It's definitely a really nice point you mentioned that in today's generation, in what you call as Gen Z, overthinking has been becoming a problem since the longest time now. People don't come out with their emotions. People actually try to hide it. I want to know that overthinking, is it actually a problem? Is it a trait, or it becomes a problem over time? पहले पीयूष जी, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ओवरथिंकिंग इज. हम जब भी ओवरथिंकिंग करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं? वी आर एंटिसिपेटिंग अ सिनेरियो इन आवर हेड जो अभी हुआ नहीं है, बट वी आर anticipating the worst case scenarios in our head, and that is consuming a lot of our energy. That is what overthinking is. And overthinking does not start from a day before. So it is something that is coming or stemming from the past. मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो हु इज ग्रोन अप इन अ फैमिली वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ केओस. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई होती है. नाउ द किड, every human being needs safety. We need emotional and psychological safety. जब वो देख रहा है कि पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो every time the kid is anticipating, अब झगड़ा ना हो जाए, अब झगड़ा ना हो जाए, अब झगड़ा ना हो जाए, बिकॉज वो सेफ्टी उसको नहीं मिल रही है जो प्राइमरी केयर गिवर से मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने लड़ाई में एंगेज्ड है, राइट. तो वो सेफ्टी जब उसको नहीं मिलती है, तो माइंड, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन सिनेरियोज बनाता है कि ये हो गया तो व्हाट इफ दे डाई, व्हाट इफ दे गेट डिवोर्स्ड, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. तो अगर आपका वाइल ग्रोइंग अप एनवायरनमेंट केओटिक है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आपका ब्रेन हमेशा हाइपर विजिलेंट मोड में रहता है, मतलब ऑलवेज अलर्ट. अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए. ये प्रैक्टिस से आता है. मतलब आज मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, आज मुझे अनसेफ फील हुआ, आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट. कल फिर से हुआ, परसों फिर से हुआ. नाउ माई ब्रेन इज ट्रेन्ड टू बी हाइपर विजिलेंट ऑल द टाइम. अब मैं बड़ी हो गई, आई केम हियर एट वर्क. नाउ अभी भी कुछ भी होता है एंड आई एम एंटिसिपेटिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि मेरा ब्रेन ट्रेन हो चुका है. वाइल ग्रोइंग अप आई सॉ दैट माई ब्रेन इज ऑलवेज एट अ हाइपर विजिलेंट स्टेट. आप सोचिए, अगर आप हमेशा विजिलेंट हैं, हमेशा अलर्ट मोड में, तो आप रेस्ट कैसे करोगे? दैट्स वाई पीपल हु ओवरथिंक, दे फील एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम. दे डोंट डू एनीथिंग बट दे फील सो एग्जॉस्टेड. You call them lazy, but they're not lazy. All of their energy, all of the energy is going into anticipating the worst case scenario. Same energy is the creative energy. If they channelize that energy into something good, they may create something, they may innovate something. तो जो भी आप देखते हैं आर्टिस्ट्स होते हैं, वो जरूर ओवरथिंक करेंगे, या जो भी ओवरथिंकर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आर्ट जरूर होगा, क्योंकि उसी एनर्जी से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो अभी हुआ नहीं है. उसी एनर्जी से आप कुछ प्रोडक्टिव भी क्रिएट कर सकते हैं. तो आपका ब्रेन हाइपर विजिलेंट स्टेट में है, हमेशा अलर्ट है कि अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए, और ये ट्रेन हो गया है. कई बार करने से ये ट्रेनिंग हो गई है ब्रेन को. दैट इज वाई आप कहीं भी जाते हो तो आप ओवरथिंक करते हो, आप हर वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लेते हो, एंड देन इट गिव्स यू दैट हार्ट बीट आपका बढ़ जाता है, आपके अंदर कोर्टिसोल और सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं. तो ये एक ट्रेट नहीं है, बिल्कुल. ये आपकी ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है जो आपको इन फ्यूचर ओवरथिंक कराती है. बिल्कुल. अ किड इज नॉट बॉर्न एन ओवरथिंकर ना. बच्चे कभी ओवरथिंकिंग नहीं करते. अगर आप देखोगे तो वो कभी भी वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन नहीं करते. मतलब ये दे वर नॉट बॉर्न विथ इट, है ना. एनवायरनमेंट से देयर माइंड गॉट ट्रेन्ड इनटू इट. सो ऑफ कोर्स ये ट्रेन होता है, ये कोई ट्रेट नहीं है जो हम लेके पैदा हो रहे हैं. And there's this one thing that you mentioned, that all the artists are channelizing their overthinking towards creativity. Yes. I have generally seen that there are a lot of artists who talk about heartbreaks and
and all these negative emotions. If you have heard about Radiohead, even Arijit Singh, I would say. हैप्पीनेस को बाहर लाके एक गाना नहीं बनता, हमेशा हमेशा किसी एक सैड इमोशन को क्रिएटिव करके वो गाने बनते हैं एंड पीपल एक्चुअली रिलेट टू इट. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग व्हाट यू सेड. बट आज का टॉपिक हमारा बच्चों की तरफ है, तो लेट्स जस्ट गेट टू दैट. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दैट ओवरथिंक about every sort of situation, about an exam or about some negative comment, and there has been increasing competition in schools, and हम आज देख रहे हैं सुसाइड के रेट्स कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं just because of the sheer pressure. So एक बच्चा ओवरथिंकिंग को कैसे हैंडल कर सकता है? तो ओवरथिंकिंग, जैसे मैंने कहा कि विथ टाइम ब्रेन को ट्रेनिंग मिली है. पहले हमको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी पीयूष जी, दैट इट इज़ नॉट जस्ट द ब्रेन, इट इज़ द ब्रेन एंड बॉडी वर्किंग इन कॉन्ग्रुएंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुस्से में हैं या दुख तकलीफ में हैं और मैं आपको बोलूँगी पीयूष एवरीथिंग इज़ फाइन, विल एवरीथिंग फील फाइन? नो, इट डजेंट वर्क, राइट? बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम थ्रेट और सेफ्टी बोलते हैं, राइट? अभी मैं आपको, हाँ, फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड. अगर इस वक्त मेरे सामने एक शेर आ जाता है तो व्हाट विल आई डू? Either you'll run, you'll freeze, or you'll try to fight. Exactly. So what will happen is my brain will tell my body, Sunaina, threat. And my body is always trying to keep me safe from the threat. So in order for me to run from that lion, I need to have extra energy. I cannot run with this energy. So वो मेरे body में adrenaline release करेंगे, मेरा heart beat बढ़ा देंगे, so that I can be safe from that threat. This threat is actually there. Now my brain does not know the difference between an actual threat or a perceived threat. Now, for example, my boss is yelling at me. It could be a perceived threat to me. My brain told my body, Sunaina, threat. Now, again, my body is releasing adrenaline. My heartbeat is up. I'm sweating. My blood pressure is going haywire because my body thinks that it is a real threat. And my mind, my brain does not know the difference between an actual threat or a perceived threat. To me, a perceived threat could be a boss yelling, me getting rejected by my lover, or anything else. To you, a perceived threat could be different because you were born in a different environment than me. So, brain को ये नहीं पता है कि ये सचमुच का खतरा है या फिर ये परसीव किया हुआ खतरा है. तो ब्रेन बॉडी को थ्रेट सिग्नल भेज देता है और बॉडी बोलती है ओके, इस थ्रेट से आपको सेव करना मेरी जिम्मेदारी है. तो वो सारे केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहा है. अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. जब शेर था तो ज़रूरत थी. आर बॉडी एंड माइंड आर इनबिल्ट फॉर सेफ्टी, कि मैं सर्वाइवल के लिए ही बनी हूँ, मैं हार्ड वायर्ड हूँ टू सर्वाइव. तो शेर है तो ब्रेन बॉडी को थ्रेट सिग्नल भेज रहा है, इट वॉज इम्पॉर्टेंट. बट बॉस चिल्ला रहा है या मेरा रिजेक्शन हो गया, मैं फेल हो गई, किसी ने मुझे चीट कर दिया, ब्रेन इज टेलिंग थ्रेट. अब वो कितने इंटेंसली थ्रेट बोलता है उतना हार्श रिपरकशन होता है. तो तभी कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग 2 महीने रोते हैं, कुछ लोग 10 दिन में गेट ओवर हो जाते हैं. इफ इट वॉज अ रियल थ्रेट एवरीबडी वुड हैव रिएक्टेड इन द सेम मैनर, बट इट इज़ अ परसीव्ड थ्रेट टू यू, इट कुड नॉट बी अ परसीव्ड थ्रेट टू मी. तो ब्रेन को ये नहीं पता है कि ये सच का खतरा है या ये परसीव किया हुआ खतरा है. तो ब्रेन फॉल्स अलार्म बजाता है. अब यहाँ पे बार बार फॉल्स फायर अलार्म है हमारे. अगर किसी ने अगरबत्ती भी जलाई या खाना भी पकाया और फॉल्स अलार्म बजेगा, बार बार रकस क्रिएट होगी, सब भागेंगे जबकि आग लगी नहीं है. तो वैसा ही फॉल्स अलार्म उतनी बार बजता है, उसीलिए इट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी. सो नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू पीयूष इट्स फाइन, नथिंग, कुछ नहीं है. You're feeling it in the body. Your body is secreting those chemicals. How can you deny that? Specifically in India, this is a culture to deny what the kid or what students are feeling. कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता. We need to validate the feelings first. ये बच्चे कैसे करें उससे पहले मैं बोलूँगी उनके पेरेंट्स और टीचर्स कैसे करें. We need to learn how to validate the emotions of our kids, of our students. If they are going through something, telling them कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, मेरे साथ क्या हुआ था तुमको पता है. You cannot disregard the world that they are going through inside. So we have to validate the feeling. हमको वैलिडेट करना ही नहीं आता क्योंकि हमारी फीलिंग्स को कभी किसी ने वैलिडेट नहीं किया. आप किसी की सफरिंग को कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो उनके वर्ल्ड में इट इज़ ट्रू, राइट. सो I had this kid who had a few pimples on her face and she was not stepping out from her house for the past 3 months and she said मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज. She was not meeting anybody. She was like a zombie. वो उठती थी बस
अपना डेली चोर्स कर पाती थी. Anybody else on the outside would think ये कोई बात है. I mean, this is stupid. Get over it and go. But you cannot say that. In her world, it is as good a threat as a lion in front of you, right? So I cannot say कि ये कुछ नहीं है, ये कोई बात है. As a psychologist and also as human beings, we need to understand that in their world it is true. It has become a perceived threat. We need to first validate the feeling. खुद के लिए भी if we are feeling something, we need to be okay with. अगर मुझे jealousy भी हो रही है, all the forbidden emotions, I need to first address it कि हाँ मुझे jealousy हो रही है. It breaks your ego. है ना, जब आप admit करते हो, you face your inner demons, your ego gets broken. But that is where it starts. That is where the healing starts. First address that you're feeling. Be okay with it. So first you have to accept that you Yes. have anxiety. Yes, we can be more specific. Overthinking क्यों है? किसी को अपने रिलेशनशिप की वजह से हो सकती है, किसी को एग्जाम्स की वजह से हो सकती है, किसी को इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकती है. तो वी नीड टू बी मोर स्पेसिफिक. एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस. वी नीड टू फर्स्ट equip ourselves, then only we can equip our students. They are young, they are molding right now. That's why at CTCD, CCRC, we are now trying to dive into parental coaching, because we understand it all starts at home and then it starts at school. So if the caregivers and the teachers are aware of these things, they will not unconsciously pass it on to their kids, and then a fresh generation, a better generation of children might, emotionally intelligent children might grow up. So it is stemming from your house, from the school. That's why we are so much focused at schools and houses. That's nice. I would want to know, I personally overthink a lot. I feel stuck. And whoever our audience is who are listening to it, how can they get out of this whole rattle of overthinking? Yes, now that's why Piyush, I started with where it is coming from, because people, they are very harsh on themselves. मैं overthink करता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ. You have to understand your body all along is trying to protect yourself. Your body is not your enemy. You have to understand your body keeps the score. एक बुक है, Your Body Keeps the Score, जो बोलती है आपके हर एक्सपीरियंस आपके बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं. सी दैट्स वाई व्हेन यू से आपको गुस्सा आता है, यू फील इट. आपका सर, पीपल से ना सर फट जाएगा. When they are in love, they feel it in their chest. Even grief is felt on the chest. Gut feeling is what? Gut is an organ in the body. Butterflies in the stomach, tummy. So your body is keeping the score of everything. आपके साथ कुछ हुआ, आप स्क्रॉल करने चले गए, दोस्तों के साथ बाहर चले गए, वेकेशन ले लिया. तभी जब मेरे साथ हुआ था, when I was young, मैंने उसको मामा घर जाके भुलाने की कोशिश की. But my body kept the score. When I grew up, all the pent up emotion वो वापस आने लग गया. तो if you are not processing it, you are projecting it. We have to understand. अगर मैंने अपने जो भी इमोशन है उसको प्रोसेस नहीं किया है, मैं वो प्रोजेक्ट करूँगी अपने स्पाउस पे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे, अपने कलीग्स पे, या जो भी मुझे लगता है मुझसे इसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ. और अगर नहीं करती हूँ तो मेरी बॉडी पे वो डिजीज़ बन के निकलेगा. लॉन्ग हेल्ड रिजेंटमेंट, साइंटिस्ट बोलते हैं, कैंसर में टर्न हो जाता है, ट्यूमर में टर्न हो जाता है. अगर मैं 15-20 साल किसी से रिजेंटमेंट होल्ड करके रखी हूँ, बॉडी में वो ट्यूमर बन के निकलता है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बॉडी इज़ ट्राइंग टू keep us safe, and we have to first forgive ourselves. There is so much anger towards ourselves first. क्यों मैंने, why did I give in to that? मैंने इस रिश्ते में क्यों हाँ बोल दी? मैंने कहाँ पे जहाँ मुझे ना बोलना चाहिए था मैंने हाँ बोला. तो जनरली ओवर थिंकर्स में खुद के अगेंस्ट बहुत एंगर रहता है. आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऑल अलॉन्ग योर बॉडी वॉज जस्ट ट्राइंग टू कीप यू सेफ. उसको नहीं पता था. सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्नॉलेज ये योर बॉडी, योर माइंड are not your enemies. It was trying to keep you safe. It gives you a sense of relief. Next step is to address कि कहाँ से आ रहा है. Overthinking बहुत ही vague term है. मैंने आपको बताया, I can overthink about my next job. You can overthink about a relationship. तो वो कहाँ से stem हो रहा है. जब मैं overthink कर रही हूँ तो मैं, you ask yourself why. Every negative emotion or unproductive emotion, be it overthinking, be it heartbreak, be it anything, it boils down to one thing, Piyush, your self-worth. And we try, and I do it myself and I do it for my students, कि आपको by कुछ भी करके अपने self worth को वापस लेके आना है. I am worthy just by existing. Just because I exist, I am unconditionally worthy. Now this
at this point sounds intellectual and wordy. You have to feel it from within. So now that you talk about self-worth, how do you actually get better with, get comfortable with the statement that you made? If you exist, you're good. Yes. Now that takes time, and that takes healing. That takes inner work. It is not going to happen. There's no pill that I can give it to you, because I'm still learning. I'm also, sometimes I fall off track and I don't feel good enough. बट ये स्टार्ट आप कर सकते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स. एक टेक्निक है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. नाउ दिस टेक्निक इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज इट कंबाइंस साइकोलॉजी विथ एनर्जी हीलिंग विथ एक्यूप्रेशर. तो बॉडी के एलिमेंट्स भी हैं और साइकोलॉजी के एलिमेंट्स भी हैं. तो कुछ टैपिंग पॉइंट्स है बॉडी में जहाँ पे इमोशन स्टोर होते हैं. वहाँ पे हम टैप करते करते कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं. एवरी स्टेटमेंट स्टार्ट विथ इवन दो. हर स्टेटमेंट इवन दो से स्टार्ट होता है. बीच में आपका जो इशू है वो आता है एंड इट एंड्स विथ आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. तो इट इज़ स्टार्टिंग विथ इवन दो. इवन दो मतलब भले ही. इट ट्रांसलेट्स इन हिंदी एज भले ही. फॉर एग्जाम्पल, मुझे जेलसी फील हो रही है. यू नो, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनिंग सो मेनी पीपल, मुझे जेलसी फील हो रही है और होगी. वी आर ह्यूमन बींग्स. वी आर मेंट टू एक्सपीरियंस ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस. माई फीलिंग इज़ नॉट बैड, my action out of that is bad. So if by getting jealous I am backbiting, I'm pulling the other person down, that's not acceptable. But me feeling it is fine. Now what I do when I say even though I am feeling jealous from my friend right now, I am now accepting that I am feeling it. So I am acknowledging it. मुझे यहाँ चोट लगी है, मैं बोलूँगी चोट ही नहीं लगी है, चोट ही नहीं लगी है. तो आप उसमें मरहम कैसे लगाओगे? सो एवरी स्टेटमेंट हैज़ टू स्टार्ट विथ इवन दो, देन योर इशू कम्स एंड देन वी डू द टैपिंग एंड वी उसके बाद हाँ सेटल डाउन. आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. तो ये एक टेक्निक है कि आप अभी एंग्शियस फील कर रहे हो, अभी आपने टैपिंग की, आपको 10 मिनट बाद शांत लगने लग जाएगा एंड यू विल फील इट इन द बॉडी, नॉट हियर. एक ये टेक्निक है. एंड देर इज़ दिस अनदर कॉन्सेप्ट जो हम बहुत आई स्वेयर बाय द कॉन्सेप्ट, हम अभी इंडस्ट्रीज़ में जाके उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. स्कूल में चाहते हैं बट वी आर नाउ ट्राइंग टू पेनिट्रेट इनटू स्कूल्स एंड टीच द किड्स माइंडफुलनेस. ये भगवत गीता का एक कॉन्सेप्ट है, दृष्टा भाव या फिर साक्षी भाव. एंड देयर यू जस्ट ऑब्जर्व योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो you know that energy cannot be created nor be destroyed. It can only be transmuted, transform हो सकता है. तो हम जब थर्ड पार्टी बन के अपनी इमोशंस को और अपने थॉट्स को विटनेस करते हैं, आपको पता है आपकी बॉडी में कोई भी इमोशन 90 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिट्रेयल हुआ, मुझे ग्रीफ हुई उस चीज़ की. अगर मैं उसको 90 सेकेंड फील कर लूँगी विदाउट रेजिस्टिंग इट, इट विल ऑटोमेटिकली गो. बट वो 90 साल तक, 9 साल तक लोगों की लाइफ में क्यों रहता है? क्योंकि हम उसके अराउंड डिनाई करते हैं और जो स्टोरीज़ बनाते हैं. जैसे मेरे साथ बिट्रेयल हुआ, मैंने क्या स्टोरी बनाई? सारे मैंने ऐसे ही हैं, मेरे साथ ऐसा ही होता है. आई एम नॉट गुड इनफ, देयर इज़ सम फॉल्ट इन मी, मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं. नाउ दिस इज़ द फूड टू दैट इमोशन. अब ये उसको ज़िंदा रख रहा है 9 साल तक, 90 साल तक. अगर मैं उसको एज इट इज़, वेर आई एम फीलिंग इट इन, दैट्स वेयर बॉडी कम्स. इफ आई एम फीलिंग इट इन द बॉडी फॉर 90 seconds, आई नो इट्स टफ, इट विल ऑटोमेटिकली गो फ्रॉम योर बॉडी. बट यू इमेजिन कि 90 सेकेंड तक उसको होल्ड करने के लिए हमको ट्रेन नहीं किया गया कभी. दीज थिंग्स शुड हैव बिन टॉट इन स्कूल्स. ये तो बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, हाउ टू फील इट, हाउ टू फील योर इमोशंस विदाउट रेजिस्टिंग देम. रेजिस्टेंस यही है कि नहीं हो रहा है, या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैं ही अनवर्दी हूँ, या लड़के ऐसे हैं, ऑल मैन आर सेम. अब ये उसको ज़िंदा रख रहा है, उसका फूड है. माइंडफुलनेस गोज़ वे डीप देन व्हाट वी आर डिस्कसिंग, एंड होपफुली हम धीरे धीरे स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक, इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे. What about shadow work? Yes, shadow is all the repressed part of yourself. जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन ने अगर इतना स्ट्रॉन्ग थ्रेट सिग्नल भेजा है कि इट इज़ टू मच फॉर द बॉडी टू टेक, इट विल पुश इट इनटू द अनकॉन्शियस. बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के थ्रू वी आइडेंटिफाई द शैडो. फेमिनिन शैडो होता है, मैस्कुलिन शैडो होता है, मदर वुंड होता है, फादर वुंड होता है. इट्स वेरी डिस्क्रिप्टिव, बहुत डिटेल में जाता है. तो पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई करने में ही बहुत टाइम जाता है, बट इट्स वेरी एनलाइटनिंग वंस यू स्टार्ट answering those questions. I mean, you will know more about yourself than
anybody else does, and आपने कभी अपने आप को उस तरीके से नहीं जाना होगा, और जब आप जान जाते हो कि ये यहाँ से आ रहा है तो you become aware next time. अभी मुझे पता है it's not him, it's my unconscious that's making me uncomfortable, so I will not project it on him. I will make effort, I'm taking efforts to work on myself rather than complaining and blaming him कि तुम ध्यान नहीं देते. Is talk therapy same as shadow work? No, talk therapy is just understanding where it is stemming from. बट शैडो वर्क में टेक्निक्स भी होते हैं. शैडो वर्क आइडेंटिफाई भी करवाता है और आपको वो टेक्निक्स भी देता है जिससे आप धीरे धीरे करके उसको बदलें. तो दैट इज़ वेयर टॉक थेरेपी, CBT, REBT इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइंडफुलनेस. सोमैटिक, अभी ब्रेथ वर्क आ गया, सोमैटिक बॉडी मूवमेंट्स आ गए. आप थोड़ा सा इस पर देखेंगे तो पीपल मूवमेंट करते हैं. जैसे मुझे यहाँ पे अगर हैवीनेस लग रहा है, ट्रॉमाज, आई टोल्ड ट्रॉमा बॉडी में स्टोर होता है, तो वो मूवमेंट के थ्रू उस ट्रॉमा को रिलीज़ करते हैं, तो उसको सोमैटिक हीलिंग बोलते हैं. अभी सारे थेरेपिस्ट बॉडी को इंक्लूड पिक्चर में ला रहे हैं, तो जस्ट बाय CBT, REBT, टॉक थेरेपी वो 40-50% रिजल्ट दे सकती है. जब तक बॉडी पिक्चर में नहीं आएगा पीयूष जी, वो कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देगा. तो शैडो वर्क गिव्स यू द टेक्निक्स. अभी वो मैं आपको इतने से समय में वो टेक्निक के डेप्थ में नहीं ले जा सकती, बट इट गिव्स यू द टेक्निक एज वेल. All of us want to control, like you said, life is not linear, but still there is this deep desire within all of us that everything should go my way. और जब कोई चीज़ my way नहीं जाती तो मेरा कॉन्फिडेंस खराब होता है, मैं लेज़ी हो जाता हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ. So when did you stop controlling the things that are outside of your control? आप देखो ना, एक बच्चा जब 9th 10th 7th से हम उसको क्या पूछते हैं, व्हाट नेक्स्ट, क्या बनना है, क्या बनना है. या फिर वो अगर 3rd आता है या 2nd आता है तो हम उसको बोलते हैं अरे वाह गुड गुड, अब अगली बार 1st आना. या फिर अगर 1st आता है, 90% लाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अब अगली बार 97 लाना, 98 लाना. तो वहाँ से ही हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है कि आई हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. आई शुड नो, मेरा फ्यूचर मुझे पता होना चाहिए. मुझे डॉक्टर, अभी मैंने खुद को ही डिस्कवर नहीं किया है. आई डोंट नो हु आई एम गोइंग थ्रू दैट आइडेंटिटी क्राइसिस. टीनेजर्स को वो होती है, उस समय ही उनके लिए दे आर फोर्स्ड टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू बिकम. आपने फ्रेंड्स देखा है, उसमें आपने देखा होगा मोनिका इज़ लाइक फ्रिकिशली, शी वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग. एंड इफ़ यू सी, हर मदर वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ हर, है ना. एंड शी ऑलवेज फेल्ट दैट रॉस वॉज चोजन ओवर हर. You can see that minute nuances throughout the show. Now, in order, क्योंकि उस समय she felt helpless. To regain that control, she always wants to win. You see, my team always wins. So that control she's trying to compensate here in her life. तो वो helplessness जो उन्होंने बचपन में feel की थी when she saw that her parents are choosing Ross over her, or her mother is being too critical about every minute things. अब वो helplessness बाद में कैसे रीगेन कर रही है, by controlling everything, by winning, and by she wants to be the best worst massager, right? So that's how it manifests. That's how the unconscious shows in relationships. I would like to know about failure. Failure is something that every student in our generation must have felt somewhere or the other. So how do we deal with failure? And do you have any experiences that from failing in something you actually learned a lot out of it? Yes, I think people learn from failure more than they do from success, and failure is an inevitable part of everybody's life, and we have to be okay with failing. We have to stop relating failure with unworthiness. We have to stop relating failure with being less than somebody. So मैं बार बार ये reiterate करती हूँ कि ये पेरेंट्स और टीचर से आता है. जब बच्चा पहली बार फेल होता है तो आप उसको क्या फील कराते हैं, दैट बिकम्स हिज परसोना. वो फिर आगे भी फेलियर को वैसे ही देखता है. तो जब मैं फेल होती हूँ और मुझे वो रीअश्योरेंस मिलता है दैट इट इज़ ओके टू फेल एंड इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स, आई बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन. आई एम ओके विथ फेलिंग. आई बाउंस बैक. Of course, I do feel the grief and everything, but I bounce back. Of course, parents are trying to make their kids better, but their unconscious pain is passing on to the kid. Every time the child will be afraid to make a move, the child will procrastinate. Procrastinate actually stems from fear of failure and fear of success. People also have fear of success. Fear of failure तो हम सबको होता है, but unconsciously आपको fear of success भी होता है. क्योंकि अगर मैं successful हो जाऊँ, मुझे चाहिए कि मैं वहाँ पहुँचूँ, पर मेरे अंदर इतना इनग्रेन्ड है कि आई एम नॉट वर्दी. तो मुझे लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो आई एम नॉट वर्दी कैसे पूरा होगा.
इतना डीपली इनग्रेन्ड है, या फिर अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो आई हैव टू ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो व्हाट आई डू इज़ आई सेल्फ सबोटाज. मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, मैं अपने ही अनकॉन्शियसली अपने आप को सबोटाज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सक्सेस का डर है. प्रोक्रेस्टिनेशन या तो फियर ऑफ सक्सेस से आ रहा है या तो फियर ऑफ फेलियर से आ रहा है. योर बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम either of the two things. So body always is trying to protect. Yes, always listen to your body. Listen to the body also. It also gives you signal. आप रूम में जाते हो, आपको आपका बॉडी सिग्नल दे देता है, इज इट सेफ और इज इट नॉट सेफ. लिसन टू योर बॉडी. वी मस्ट रिकनेक्ट विद द बॉडी. तो वो जो टेक्निक्स की बातें मैं कर रही हूँ, चाहे वो ब्रेथ वर्क हो, प्राणायाम हो, योग हो. योग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, वी ऑल नो इट्स कनेक्टिंग द माइंड एंड बॉडी. ये सारी चीज़ें हमको रिकनेक्ट करने के लिए बनी गई थी, ताकि हम वी बिकम इन ट्यून विथ आवर बॉडी, टू आवर बॉडी, और हम सुने, उसके सिग्नल्स को पकड़ें, अर्ली ऑन पकड़ लें. तो दैट्स हाउ वी नीड टू रिकनेक्ट विद द बॉडी. My question is that, for example, you are telling me about all those techniques that you can apply. I apply those things, but at the same time, when I go, it's not a one day's job, as you mentioned. Yes. When I go out in the world, how do I particularly get out of that? I mean, I know in my head that I have these issues. Like, I have established it, I have accepted it. I go out in the world, but these issues are still bothering me. So how do you get out of that feeling of helplessness कि इसके आगे क्या? आगे क्या? ये कई लोगों को होता है इन देयर हीलिंग जर्नीज, एंड मुझे भी कई बार लगता है आई एम बैक टू स्क्वायर वन अगेन. अभी तो आई वाज डूइंग गुड, एंड ऑल ऑफ सडन अ ट्रिगर एक आता है लाइफ में, एंड देन यू फील लाइक फिर से मुझे वो इमोशन आने लगे. इट मीन्स इट्स नॉट गोइंग. तो साइकोलॉजी में बोलते हैं यू हैव टू मैनेज इट, एंड you have to be very easy on yourself, Piyush. You have to allow yourself to fall off track. You have to allow yourself to make mistakes and to, ऐसा नहीं होता है कि आप स्क्वायर वन पे आ जाते हो. ये एक जर्नी है, आप ऑन ऑफ होते रहोगे. इसीलिए वी सजेस्ट कि अगर आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट है, आप एक सपोर्ट ग्रुप, एक कम्युनिटी, इसीलिए हम क्रिएट करते हैं, बिकॉज व्हेन आई फॉल, आई हैव यू एज माई सेफ्टी नेट. व्हेन यू फॉल, यू हैव मी एज अ सेफ्टी नेट. सो एक कम्युनिटी का इसीलिए इतना महत्व है कि हम एक सेफ कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जर्नी है जहाँ पे हम सब गिरेंगे. वी मे एट टाइम्स नॉट फील कि ये काम कर रहा है, बट जब आपके पास वो लोग होते हैं, देन दे ऑलवेज हेल्प यू गो बैक ऑन ट्रैक अगेन. तो कम्युनिटी में रहें, ऐसे लोगों के साथ में जुड़ें, ऐसी बातें करें, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, तो दैट विल हेल्प यू रिमेन ऑन ट्रैक. सो आई try to keep myself, I try to surround myself with people who speak like, they are like minded, और वो इन बातों में इंटरेस्ट रखते हैं या अपनी जर्नी मुझसे शेयर करते हैं. तो दैट मेक्स मी फील रियली सेफ. मुझे लगता है कि चलो ठीक है, इट्स फाइन, इफ़ he or she is doing it, I can also do it. वो अगर इससे बाहर निकल के आई तो मैं भी कर सकती हूँ. इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो कम्युनिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. But now to be part of the community, even after you accept it, for example, anxiety patients or whoever is going through a phase of overthinking, they don't come out with their thoughts. They feel that they'll be judged. They feel that people are gonna think negatively about me and stop, hanging around with me. So how do I become comfortable to let people know that this is something that is real to me and I'm feeling it? Because everyone tries to, like you said, everyone tries to hide these emotions and not go out telling everyone that this is what is happening to me. जो in turn हमें और ज़्यादा overthink कराता है और हम और सल्व करते हैं. और बच्चों के साथ में और भी होता है, क्योंकि पीयूष, आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट नॉट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. मुझे पता है अगर मैं वर्क प्लेस में आ रही हूँ और किसी के साथ में ये नहीं हुआ है तो वो ये नहीं समझेगा, उसको लगे ये सब क्या बकवास है, कुछ नहीं होता, जस्ट मूव आउट ऑफ इट. तो आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट आई डोंट हैव टू प्रूव माई वट आई एम फीलिंग टू एवरीबडी. येस, ऑफकोर्स मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी फीलिंग्स वैलिडेट हो. फॉर दैट आई हैव माई क्लोज्ड वंस, touch wood, I have my husband for that. So he validates my feelings. He understands कि हाँ, she's going through it, even though he has never gone through depression and all. But I have accepted that not everybody will validate my feeling. You have to stop justifying your feelings to everybody. आप ही accept कर लो, इतना बहुत है. If you have one or two friends or your spouse, then that gives
यू अ कॉन्फिडेंस कि ठीक है, आपको सबको नहीं एक्सप्लेन करना है. अभी भी इंडिया में इट्स बहुत स्टिग्मा है इन सब चीज़ों को लेके. बट इफ़ यू मीट विथ अ पर्सन अब्रॉड, दे आर सो ओपन. इवन मैन. और आपको इसलिए और भी ज़्यादा पीयूष इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू बिकॉज एज मैन यू आर टॉट टू सप्रेस, है ना. लड़की है क्या रोता है, लड़की है क्या. द सोसाइटी हैज़ टॉट यू नॉट टू फील एनी थिंग बिकॉज यू आर फीलिंग यूर वीक, है ना. आपने इमोशंस को वीकनेस से एसोशिएट किया है. लड़कियों को ये नहीं बोला गया बट लड़कों को बोला गया. तो लड़के जब भी इमोशंस फील करते हैं उनका ऑटोमेटिक है टू सप्रेस इट. इवन इफ आई विल क्राई इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल गेट अनकम्फर्टेबल क्योंकि वो आपको अपने डिस्कम्फर्ट रिमाइंड करता है कि इमोशन फील करना इज़ अनकम्फर्टेबल. एंड इफ आई एम फीलिंग टू मच, आई एम क्राइंग, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट क्योंकि आपको अपना हैंडल करने नहीं आता है. बट लड़कियां होगी वो कितने अच्छे से चुप कराती है अपनी फ्रेंड्स को, राइट, बिकॉज दे वर नॉट, उनको ये नहीं दिमाग में डाला गया था. तो आई डू अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम. बट देन अगेन वैलिडेट इट योर सेल्फ. बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप वैलिडेट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को करा सकते हो. एवरी टाइम कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है. जस्ट बाई होल्डिंग हैंड, जस्ट बाई सिटिंग विद द पर्सन, यू कैन वैलिडेट. लेट द पर्सन वेंट इट आउट, लेट द पर्सन फील द ग्रीफ. यू टेलिंग देम कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, तो आप उसकी फीलिंग को डिसरिगार्ड करते हो. वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा. दैट्स नॉट एम्पैथी. एम्पैथी इज़ वैलिडेटिंग द फीलिंग एंड बीइंग देयर विद द पर्सन. How important is it to share that, whatever you're feeling? I mean, does it stop your overthinking at some point, or or you just go around in loops? It depends upon who I'm sharing it with. If I'm sharing it with you and I will feel heard, I will feel better. If I'm sharing it with somebody else, और आपको पता चल जाएगा कि मुझे सुना गया है कि नहीं. मैं बार बार ये सबको बताती हूँ, हर ह्यूमन बींग्स के 2 नीड्स होते हैं, द नीड टू बी सीन एंड द नीड टू बी हर्ड. तो जब मैं कुछ बोलती हूँ और मुझे वहाँ से हर्ड फील हो जाता है तो मेरे फीलिंग्स वैलिडेट होते हैं. मुझे लगता है कि मुझे सुना गया एंड आई फील बेटर. उसीलिए कम्युनिटी वहाँ पे आती. अभी मैं रॉन्ग पर्सन के सामने गई और मैंने अपना दुख रोया, उसने मुझे और 4 बातें सुना दी. बोले पागल हो गई है तू, सब क्या बकवास है, सबसे उठो. वो तो मेरे को और एक वुंड दे दिया. नाउ आई एम डाउटिंग माई फीलिंग. क्या मुझे ये फील करना चाहिए, क्या मैं गलत फील वी आर डाउटिंग आवर फीलिंग्स ऑल्सो. क्या मुझे ये फील करना चाहिए या नहीं. तो वो इट कैन बिकम वर्स इफ़ आई एम नॉट बीइंग हर्ड. इट कैन बिकम better if I'm sharing it with the person who can make me feel heard. So that's why choose your community and choose the people who you are spending your most of the time with very wisely. Everyone talks about mental health. Everyone say there are so many forums, there are so many gurus talking about mental health. Lekin for a newbie like me, how do I really start with working on my mental health? For a person who doesn't really know anything about it. Wonderful. So now that we are aware of the importance of mental health, rather we are going through it, so we've been forced to be aware of mental health. Let us start with savers. हमने एक बंडल क्रिएट किया है जो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, जो फर्स्ट जिसने इच्छा की है कि मुझे अपने मेंटल हेल्थ के प्रति काम करना है. नाउ सेवर्स इज साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग. मैं आपको ब्रीफली समझा देती हूँ. तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको स्टार्ट करना है, ये मेरे मेंटोर ने मुझे इसके बारे में अवगत कराया था एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड इट एंड वी वांट टू शेयर इट विथ एवरीबडी. वी स्टार्ट विथ SAVERS का E है, दैट इज़ एक्सरसाइज. आई टोल्ड यू बिफोर कि योर बॉडी कीप्स द स्कोर. तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इमोशंस जमा रहते हैं, पेंट अप इमोशंस रहते हैं. तो जस्ट बाय मूवमेंट वो रिलीज होते हैं, फर्स्ट स्टेप. तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हैं, 15 मिनट्स ऑफ स्वेटिंग इट आउट विल हेल्प यू टू फील अ बिट बेटर. तो आप 15 मिनट्स के लिए स्वेट आउट कीजिए, वॉक कीजिए, डांस कीजिए, ट्रैम्पोलिन में कूदिए, जो करना है करिए. यू हैव टू स्वेट आउट 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, नॉट 2 घंटे की, क्योंकि अब वो इतना बड़ा गोल अगर हम देंगे तो फिर कोई स्टार्ट नहीं करेगा. जस्ट 15 मिनट्स ऑफ स्वेटिंग इट आउट. स्टेप नंबर 2 इज़ साइलेंस. नाउ इन दिस व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन प्रैक्टिस स्क्वायर ब्रीदिंग. Square breathing is inhale 2, 3, 4, hold 2, 3, 4, exhale 2, 3, 4 and again hold 2, 3. You can find it on YouTube. आप YouTube में square breathing टाइप करेंगे तो आपको एक बंदा बोलता हुआ भी मिल जाएगा, तो आपको वो एफर्ट भी नहीं करनी है. तो साइलेंस में आप 5-10 मिनट तक सिर्फ अपने ब्रीदिंग को रिदम में लेकर आते हैं. 5 मिनट टू बिगिन विथ. ये हमारा E हो गया, S हो गया. अब आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, अगर जो हमारे व्यूवर्स अवेयर हैं तो दे कैन स्टार्ट यूजिंग एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन टुगेदर.
I would request them to record their affirmations in their own voice, because your subconscious understands your voice more than anybody else's. So what you can do is you can use ChatGPT for that. पीपल एफर्मेशन लिखने के लिए आपको प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, एक इमोशंस जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ये कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट किया है. मतलब नए पैटर्न तभी बनेंगे पीयूष जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फायरिंग होगी. और फायरिंग कैसे होती है? या तो रिपीटेशन से या तो स्ट्रॉन्ग इमोशन से. तो अगर मैं एफर्मेशन कर रही हूँ आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, and my conscious mind is looking at my bank account and saying what rich, look at your bank account, friction होगा और कुछ असर नहीं होगा. you're wasting your time. you have to convince your mind, you have to feel the feeling of richness कोई भी तरीके से. you are rich in health, you are rich in potential, you are rich in family, friends, कुछ भी. you have to feel the emotion of richness, joy, success. then only it is working, it is creating new patterns. तो आप एफर्मेशन विजुअलाइजेशन यूज़ करेंगे. चैट जीपीटी में आप कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, वो प्रॉम्प्ट्स अगर आप डालेंगे तो वो आपके गोल्स के हिसाब से, आपके कोर वैल्यूज़ के हिसाब से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आप कर देते हैं और अपने कोर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, अपने गोल्स पुट कर देते हैं चैट जीपीटी में, और वो प्रॉम्प्ट्स डालते हैं तो वो आपको एफर्मेशन भी निकाल के दे देता है. उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको रात को सोते समय प्ले कर दीजिए. इवन इफ़ यू स्लीप इट वर्क्स, यू नो, सबकॉन्शियस तभी भी ले लेता है चीज़ों को. Then it's reading one paragraph for 5 minutes. पूरा book complete नहीं करने हैं. There are tons of books that talk about these concepts. One of my favorite is Breaking the Habit of Being Yourself by Dr. Joe Dispenza. You can also read The Power of Now by Eckhart Tolle. तो आप एक पैराग्राफ हर रोज़ पढ़िए, सिर्फ एक पैराग्राफ. दैट कम्स अंडर रीडिंग. एंड स्क्राइबिंग में व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ईदर जर्नल योर फीलिंग्स और यू कैन मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड डायरी. बिकॉज जो इमोशन का स्पेक्ट्रम होता है पीयूष जी, उसमें सबसे नीचे इमोशन होते हैं शेम, गिल्ट, और सबसे ऊपर आता है ग्रैटिट्यूड और ऑथेंटिसिटी का. तो जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आपके अराउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हायर वाइब्रेशन, जो हम ऑरा या वाइब बोलते हैं, वो बहुत हाई वाइब होता है. तो हमको ग्रैटिट्यूड फील करना है. तो मैं जब ग्रैटिट्यूड डायरी लिखती हूँ तो मुझे वो फीलिंग आती है, और जब मुझे वो फीलिंग आती है तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हायर फ्रीक्वेंसी में होता है और मुझे वैसे ही चीज़ें मिलती हैं. मैं इस फ्लोर में हूँ तो मुझे यहाँ के एक्सपीरियंसेस होंगे. मुझे हायर फ्लोर में जाना है तो मुझे एलिवेट होना पड़ेगा. एलिवेटेड फीलिंग्स, इमोशंस है ग्रैटिट्यूड, ऑथेंटिसिटी, लव, पीस. तो ग्रैटिट्यूड को बहुत सबसे ऊंचा रखा गया है. अभी ऑथेंटिसिटी भी आया है, रिसेंटली डिस्कवर्ड है. सो आई एम नॉट डूइंग इट टू साउंड गुड, आई एम डूइंग इट क्योंकि मुझे अपने वाइब्रेशन को यहाँ रखना है और मेरे साथ वो चीज़ें हुई जिसके लिए मैं और ग्रेटफुल रहूँ. तो स्क्राइबिंग में आप ये कर सकते हैं. एंटायर प्रोसेस विल टेक यू 35-40 मिनट्स, नॉट टू मच, वी कैन डू दिस मच. तो आप सेवर से स्टार्ट करिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, और आपको रिजल्ट्स एक हफ्ते में, 10 दिन में थोड़े थोड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. सो आई एम श्योर इट विल हेल्प everybody. Thank you, Dr. Sanjana. The conversation was really insightful. I learned a lot from you, and so do I think the viewers would have. I personally want to tell all the viewers that always stick to the present, be conscious. Whatever happened in your past is just a memory. What is happening in the future is just pure imagination. So just be conscious of this present moment, be grateful, like you said, and enjoy your life. So thank you, and for more such insightful content, hit the like and subscribe button.